Hello everyone, welcome to Personal Tutor. This is me Priyanshi, and today we are going to do chapter 2 Inside Our Earth, grade 7th Geography. So, inside our Earth, first of all, what we know about Earth is that Earth is our homeland. Till now, this is the only planet which have life. मतलब जहाँ पर देखा गया है कि लाइफ है वो कौन सा planet है अर्थ जहाँ पर हम रहते हैं. अब हम इस चैप्टर में देखेंगे व्हाट इज इनसाइड आवर अर्थ. मतलब हम अगर बाहर से देखते हैं तो हमें क्या क्या दिखता है. वी सी वेरियस लैंड फॉर्म्स, अलग अलग लैंड के टाइप्स दिखते हैं. वी कैन सी डिफरेंट रॉक्स एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल. बट नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी कि अगर ये जो अर्थ है हमारी, जो लैंड है जिस पर हम रहते हैं, उसके नीचे की तरफ अगर हम जाएंगे तो वहां पर क्या होगा. So this is what we are going to cover in this chapter, Inside Our Earth. The Earth, our homeland, is a dynamic planet. Dynamic means ever changing. यानी जो हमारा Earth है, it keeps on changing. It never stops at one place. मतलब एक जैसा नहीं रहता है. It keeps on changing and changing. So we'll start with interior of the Earth. So our earth is like an onion. लाइक अनियन को हम अगर देखते हैं तो उसमें कितनी सारी लेयर्स होती है. वन बाय वन वी रिमूव दोज लेयर्स. तो ऐसे ही हमारी अर्थ भी है. हमारे अर्थ के अंदर भी बहुत सारी लेयर्स हैं. So the earth is made up of several concentric layers with one inside other. So it means concentric means having same center but different circles. मतलब अगर ये सेंटर है तो यहाँ से अलग अलग साइज के there are many in this circular form. There are many layers of the earth. The outermost or the uppermost, this one, the uppermost layer is known as crust. Here you can see in the diagram also, the uppermost layer is known as crust. It is the thinnest of all the layers. Means ये जितनी भी layers हैं इसके अंदर, basically it consists of basically earth consists of three layers: crust, mantle and core. And crust होती है वो सबसे ऊपर वाली, the uppermost layer is known as crust, and this crust is the thinnest among the other layers. It is about 35 kilometers on the continental mass and only 5 kilometers on oceanic floors. मतलब जो हमारे continents होते हैं, जो ये हमारी अर्थ है, इस पे जितने भी continents होते हैं, तो अगर हम इन continents को मिला लें, so it makes around 35 kilometers. And the oceanic floor means these are oceans. So ocean के नीचे जो floor होता है वो floor that is about 5 kilometers. The main mineral constitution of continental mass, मतलब ये जो continents हैं ये किसके बने हुए होते हैं. So these, first of all, these uppermost layer is known as crust. It is the thinnest and it is about 35 kilometer on the continental mass and 5 kilometer on oceanic floor. Now what is this crust जो कि कॉन्टिनेंटल मास पर होती है. मतलब जो कॉन्टिनेंट पर जो क्रस्ट होती है, जो लैंड होता है, वो किसका बना हुआ होता है. So it is made up of the main mineral constituents of the continental mass are silica and alumina. So these are the two minerals. Basically minerals are like the natural occurring rocks. मतलब जो rocks होती हैं पहले से, जिनका कुछ specific chemical composition होता है. मतलब कुछ specific amount के उसमें कोई chemicals होता है अलग अलग. तो वैसे ही जो हमारा क्रस्ट है, ये क्रस्ट भी, जो क्रस्ट कॉन्टिनेंट, मतलब जो कॉन्टिनेंट के ऊपर जो लैंड मास है, जो क्रस्ट है, इट इज मेड अप ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिना. दैट्स व्हाई वी आल्सो से, मतलब अगर if it is asked that which mineral forms the continental crust, so we can also say it is made up of Sial. Sial means silica and alumina. The oceanic crust is consisted of silica and magnesium. मतलब हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट काय का बना है, सिलिका एंड एल्यूमिना. वैसे ही जो हमारा ओशन का क्रस्ट है, इट इज मेड अप ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम. एंड वी कैन आल्सो कॉल दिस, and we can also say it as
Seema. So one is Sial, another is Seema. Sial is on the continental mass and Seema is the oceanic crust. Now, just beneath the crust is the mantle. Now, as we have seen, there is first layer we are already done with the first layer, which is crust. Now we'll move on to the second one, which is mantle. अब हमने जब लिथोस्फियर पढ़ा था तब हमने देखा था इसके पहले वाले चैप्टर में दैट लिथोस्फियर इज द आउटर मोस्ट, यानी जो हमारा क्रस्ट वाला एरिया है वही आता है हमारे लिथोस्फियर के अंदर. नाउ आफ्टर डूइंग क्रस्ट विल मूव ऑन टू द सेकेंड लेयर विच इज मेंटल. तो क्रस्ट के जस्ट नीचे वाला जो एरिया होता है दैट इज नोन एज मेंटल. नाउ दिस मेंटल एक्सटेंड्स अप टू अ डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर्स. यानी हम अगर क्रस्ट के बाद देखें, if we look here, so here is our crust, this is our crust, alright, and just after this is mantle. तो ये जो एरिया है, this depth is 2900 kilometers below the crust. So means if we move from the crust, so it makes around 2900 kilometers in its depth. Here you can clear out, this is the continental crust, this area. These are the continents and the crust is here. These are the ocean and oceanic crust or the ocean floor. Moving on, the innermost layer is the core. अभी हमने दो layer के बारे में देख लिया. First is crust, second mantle and third coming is core. So core is the innermost layer of the earth with a radius of about 3500 kilometers. Radius means this area, this much. So this hole is from here to here. This hole will be under core, like this all area. Alright. So this much, this is called as the radius. This is core. So this is the radius. So the radius of the core is 3500 kilometers and it is made up of nickel and iron. That's why we can also call it as it is made up of Ni. Ni means nickel and Fe is a sign for iron which is called as ferrous. मतलब जो हमारी periodic table होती है chemistry में उसके according हम iron को Fe लिखते हैं. Fe is the sign for iron. So it is iron basically comes from the word ferrous. That's why we say Ni. And the central core has very high temperature and pressure. यानी यहाँ का जो temperature होता है, जो pressure होता है वो बहुत ही high होता है. So from here we understood the three layers of the earth which are crust, mantle and core. Now we'll move on to the next topic which is rocks and minerals. Okay, so now we'll see rocks and minerals. So as we know what are rocks, क्योंकि अगर हम हमारे आसपास देखते हैं तो हमें बहुत सारी rocks देखने को मिल जाती है. And जो हमारी earth का जो crust है, it is basically made up of rocks, minerals and soil. ये हमने पिछले chapter में भी देखा था. So what actually is a rock? A rock is a natural mass of mineral matter that makes up the earth's crust is called a rock. So it basically means कि कोई भी ऐसा natural mass यानी nature के द्वारा दिया हुआ, not made by us, it is naturally occurring or created by nature. So any mass that is created by nature or anything that is made by nature which consists of mineral matter. Mineral हमने देखा कि mineral मतलब क्या होता है. Mineral is like any form which have some chemical composition, some fixed chemical composition. Chemicals basically comes under chemistry और ऐसी कोई भी चीज जिसके कारण कोई change होता है
that are known as chemicals. तो ये जो minerals होते हैं they consist of some basic structure and a chemical composition. तो ऐसा कोई भी natural occurring mass जिसके अंदर minerals हो और वो जो mass हो that is present on Earth's crust. Now these rocks can be of different color, size and texture. So there are three major type of rocks which are igneous, sedimentary rock and metamorphic rock. Now one by one we'll study about them. So first let's see what are igneous rocks. When the molten magma cools, it becomes solid. Thus, rocks formed are called igneous rocks. अब पहली बात igneous का मतलब क्या होता है? Igneous comes from a Latin word ignis which means fire. तो अगर हम देखें तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा कि द रॉक विच कम्स आउट ऑफ फायर. ऑलराइट, तो एक्चुअली अगर हम इसको थोड़ा सा डेफिनेशन की फॉर्म में बोले तो वो फायर क्या है? वो फायर है ये मॉल्टन मैग्मा. अब मॉल्टन मैग्मा क्या होता है? मैग्मा इज द लिक्विड विच इज फाउंड इन मेंटल. मतलब अभी हमने देखा ना 3 लेयर्स होती है. देयर आर क्रस्ट, मेंटल एंड कोर. तो यहाँ पर जो मेंटल होता है वहां पर एक लिक्विड होता है, बहुत हॉट लिक्विड होता है क्योंकि यहाँ पर बहुत हाई टेम्परेचर होता है. तो इसके कारण ये जो लिक्विड होता है इट इज दिस लिक्विड दैट इज नोन एज मैग्मा. अब क्या होता है, जैसे हमारे पास वॉल्केनोज होते हैं तो जब यहाँ से जो ये मैग्मा होता है, ये जो मैग्मा होता है कम्स आउट थ्रू दीज वॉल्केनोस. अब यहाँ से जैसे ये मैग्मा बाहर आया उसके बाद क्या होता है, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ये जो मैग्मा होता है ये धीरे धीरे कूल होने लगता है, यानी ठंडा होने लगता है. मतलब ये लिक्विड फॉर्म में होता है, धीरे धीरे ये थोड़ा सा सॉलिडिफाई होने चालू हो जाता है बिकॉज ऑफ दी टेम्परेचर एंड प्रेशर. अब ये जब थोड़ा सा ऐसे मैग्मा कूल होने लगता है तब ये सॉलिड फॉर्म में आने लग जाता है. एंड ऐसी सॉलिड फॉर्म में आने के बाद हम इसको रॉक बोलने लगते हैं. अब क्योंकि ये मोल्टन मैग्मा से बनता है दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज इग्नियस रॉक्स. यानी ऐसी रॉक जो कि मोल्टन मैग्मा से बनी हो. मैग्मा इज द हॉट लिक्विड फाउंड इन द मेंटल. And when this magma cools, it becomes solid, and thus the rocks which are formed are known as igneous rocks. Also, these igneous rocks are also known as primary rocks. Alright, अब ये जो igneous rocks होती हैं, there are two types. Igneous rocks are of two types, intrusive and extrusive. यानी दो टाइप होते हैं इसके भी. One is intrusive and second is extrusive. अब बेसिकली डिविजन होता है उस बेस पर कि जो हमारा मैग्मा है वो कहाँ पर कूल डाउन हो रहा है. मतलब वो अर्थ के जो मेंटल है उससे बाहर आकर कूल हो रहा है या वहीं पर हो रहा है. Alright, so we'll see to them one by one. First, let's see what are extrusive igneous rocks. So extrusive igneous rocks जैसा कि अभी हमने देखा था that there are volcanoes. तो ये volcanoes से जब मैग्मा बाहर आता है, ये मैग्मा है, दिस मैग्मा इज कमिंग आउट, और जब ये इन volcanoes से बाहर आकर और फिर यहाँ पर बाहर लैंड पर आकर कूल डाउन होता है एंड देन इट फॉर्म द रॉक्स. दिस रॉक्स आर देन नोन एज एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स. और ये रॉक्स जैसे ही बाहर आकर बहुत जल्दी कूल डाउन होते हैं. अब ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जब वो वॉल्केनो के अंदर थे तो वहां पर जो उसका टेम्परेचर होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, लेकिन जैसे ही वो चीज बाहर आती है सडनली कूल डाउन, बहुत जल्दी कूल डाउन होती है. इसके कारण क्या होता है, यहाँ पर जो रॉक्स होते हैं दे फॉर्म सो फास्टली. ये जो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स होती है दे आर वेरी फाइन ग्रेन, मतलब बहुत छोटे छोटे टुकड़े होते हैं. ओके, बिकॉज बाहर आते से ही बहुत जल्दी से कूल डाउन हो जाती है तो दे डोंट गेट इनफ टाइम टू गेट अटैच टू ईच अदर. यानी जैसे ही बाहर आते से ही वो ठंडी होने लग जाती है. ऑलराइट, सो ओके, लाइक अगर हम हमारे जो रेफ्रिजरेटर्स हैं उनमें जो हमारे फ्रीजर्स होते हैं तो क्या होता है, हम क्या करते हैं, जो हमारी आइस ट्रे होती है वी पुट वाटर इन इट और फिर उसको हम हमारे फ्रीजर में रख देते हैं. अब जैसे ही फ्रीजर में वो जाते हैं वहां पर टेम्परेचर कम हो जाता है. जैसे ही टेम्परेचर कम होता है तो वो क्या हो जाती है, सॉलिड बन जाती है.
हमारी आइज बन जाती है। ऐसे ही यहाँ पर भी होता है, जब ये वॉल्केनोज के अंदर होती है तो ये लिक्विड होती है, और जैसे ये बाहर आती हैं दिस सॉलिडिफाई बिकॉज ऑफ कूलिंग डाउन। तो ये क्या बहुत छोटी छोटी होती हैं साइज में। अब इसका एग्जाम्पल है बेसाल्ट रॉक। ऑलराइट, बेसाल्ट इज अ काइंड ऑफ इग्नियस रॉक, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। अब जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू है, हमारा जो इंडिया है उसमें अलग अलग लैंड फॉर्म से हमने देखा था। इंडिया का एक लैंड फॉर्म है विच इज प्लेट्यू। हमने देखा था प्लेट्यूज क्या होते हैं, यानी एक फ्लैट लैंड बट थोड़ा सा अप्रेस्ड हो, थोड़ा सा ऊपर की तरफ हो। ऑलराइट, सो अ प्लेन विच इज अप्रेस्ड, यानी ये हमारा प्लेट्यू है, ये हमारा प्लेन है। तो प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू, यानी डेक्कन रीजन में, इंडिया का जो एक डेक्कन रीजन है वहां पर जो प्लेट्यू है वो प्लेट्यू दैट इज नोन एज डेक्कन प्लेट्यू। अब ये जो डेक्कन प्लेट्यू है यहाँ पर जो रॉक्स है दे आर बेसिकली द बेसाल्ट रॉक्स। और अब नेक्स्ट फॉर्म कम्स इज इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। अभी हमने देख लिया एक्सट्रूसिव क्या होती है। अब व्हाट आर इंट्रूसिव? अब इस इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स आर दोज रॉक्स जो कि अंदर ही, यानी हमारा जो मैग्मा है वो क्रस्ट के अंदर ही जब कूल डाउन होकर धीरे धीरे रॉक्स बनाने लगता है। यानी अभी यहाँ तो क्या था एक्सट्रूसिव में कि यहाँ से वो बाहर आ गई, ऑलराइट, वॉल्केनोस के थ्रू बाहर आ गई। लेकिन कुछ रॉक्स ऐसे होते हैं जो यहाँ से बाहर नहीं आते, और जो ये क्रस्ट है, जैसे यहाँ पर क्रस्ट थी, यहाँ पर हमारा था, सॉरी यहाँ पर हमारा था मैग्मा, तो ये मैग्मा बाहर आ गया। लेकिन कुछ रॉक्स ऐसी होती हैं जो इस क्रस्ट के बाहर नहीं आती है। ओके, दिस इज मैग्मा एंड दिस इज आर क्रस्ट। तो ये क्रस्ट के अंदर ही रहकर कभी कभी धीरे धीरे कूल डाउन होती है। एंड एट दिस टाइम अगर जो भी रॉक्स ऐसे फॉर्म होते हैं those rocks are known as intrusive। अगर हम इनको याद रखना चाहें so it is like extrusive को हम याद रख सकते हैं the rocks that exit, okay, and intrusive को हम याद रख सकते हैं the rocks that are inside। alright, those rocks, the magma that comes out that exits the crust are known as extrusive igneous rocks, or the magma which remains inside the crust and cools down and form rocks are intrusive igneous rocks। अब ये जो रॉक्स अंदर की तरफ ही बनती है दे आर बेसिकली, मतलब बहुत धीरे धीरे फॉर्म होती है। जैसे हमारी एक्सट्रूसिव थी, दोज रॉक्स कूल डाउन वेरी फास्टली और इसलिए बहुत जल्दी जल्दी उनके रॉक्स बन जाते थे। लेकिन जो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स होती है दे आर फॉर्म इनसाइड, और इसीलिए बहुत धीरे धीरे कूल डाउन होती है और बहुत धीरे इनका प्रोसेस होता है थ्रू विच दे बिकम रॉक्स। ओके, सिंस दे कूल डाउन स्लोली दे फॉर्म लार्ज ग्रेन्स। हमारे एक्सक्लूसिव में हमारे जो रॉक थे उसका साइज कैसा था, छोटा छोटा था। वहीं पर इंट्रूसिव में धीरे धीरे कूल डाउन होने के कारण क्या होते हैं, सब बहुत बड़े बड़े रॉक्स फॉर्म करते हैं। ऑलराइट, इसका एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। जैसे हमारा एक्सट्रूसिव का एग्जाम्पल था बेसाल्ट, वैसे ही इंट्रूसिव का एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट बड़े बड़े रॉक होते हैं, और ये जो रॉक होते हैं, जो ग्रेनाइट होते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें बनाने में हेल्पफुल होते हैं। अब ये हेल्पफुल कहाँ होता है, जो ग्रेनाइट होता है, ग्रेनाइट स्टोन हमने सुना होगा, हमारे घर में भी हमने देखा होगा। देर आर सम स्टोन्स विच आर यूज फॉर प्रिपेयरिंग पाउडर और पेस्ट ऑफ समथिंग। ठीक है, जैसे हमारे घर में भी हमने पुराने टाइम में देखा होगा आपने। सो इट इज लाइक देयर इज अ बिग स्टोन राइट हियर, और फिर उसके ऊपर एक ऐसा ग्रेनाइट स्टोन होता है, एंड दिस स्टोन इज यूज फॉर मेकिंग पेस्ट एंड पाउडर ऑफ थिंग्स। जैसे यहाँ पर कोई भी स्पाइसेस होती हैं, एंड देन दे आर these granite stones are used to put pressure on these things to convert them into paste and powder। So these are basically the two kinds of igneous rocks। अभी हमने देख लिया कि igneous rock क्या होती है and the types of igneous rock। Now moving on to our second type which is sedimentary rock।
So the meaning of sediment is to settle down. Okay, तो जब रॉक्स नीचे रोल होती है, जैसे ये हमारे पास माउंटेन्स होते हैं, हमारे हिल्स होती हैं अलग अलग। अब यहाँ से कभी कभी क्या होती है, जो रॉक्स होती है, हमने भी बहुत बार देखा होगा, सुना होगा, यहाँ से रॉक्स नीचे स्लाइड डाउन होती है, नीचे आकर जैसे रोल होकर ये नीचे यहाँ पर लैंड पर आ गई। ऑलराइट, अब यहाँ लैंड पर आने के बाद क्या होगा, अगर बहुत सारे रॉक्स एक साथ आए तो वो क्या होंगे, सब ऐसे टूट जाते हैं अलग अलग। ऑलराइट, they are cracked, they form some cracks and they hit each other and are broken into fragments. Fragments means smaller particles, यानी इतने बड़े बड़े से ऐसे छोटे छोटे हो जाते हैं। Right, they are converted into fragments. अब these smaller particles are known as sediments, यानी जो small particles जो fragments में convert हो गए थे, जो बड़ा stone, these small particles are now known as sediments. अब ये जो सेडिमेंट्स हैं, these sediments are transported यानी taken away, यानी एक जगह से, जैसे यहाँ पर लैंड है, यहाँ पर है हमारे बहुत सारे sediments, alright, small small particles are there. Now these particles are carried away, okay, or transported and deposited यानी एक जगह इकट्ठा कर देना, मतलब ये ऐसे अलग अलग थे सब। नाउ दे आर ट्रांसपोर्टेड एंड कैरीड अवे एंड डिपॉजिटेड, ये होता है डिपॉजिशन का मतलब। ओके, व्हेन दे ऑल आर deposited at one place. So they are deposited. How they are transported? They are transported and deposited through wind and water. Wind, water कुछ ऐसे ट्रांसपोर्टर्स हैं जो इनको कैरी करते हैं, एक जगह से इन सेडिमेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर जाते हैं। अब ये जो सेडिमेंट्स होते हैं, ये सेडिमेंट्स आर कंप्रेस्ड एंड हार्डेंड। अब जैसे एक ये हो गया, ये हो गया, सो दे आर कंप्रेसिंग, और धीरे धीरे कंप्रेस होने के कारण क्या होता है, वो हार्ड होने लगते हैं। और ऐसी प्रोसेस के थ्रू जो रॉक्स बनते हैं उनको हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। क्यों? क्योंकि सेडिमेंट से ये रॉक्स फॉर्म हुई है एंड दे आर सेटलिंग डाउन। इसका एग्जाम्पल होता है सैंडस्टोन। सैंडस्टोन इज मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड। ठीक है, सैंड हमको पता है। अब ये जो सैंड के फ्रेगमेंट्स होंगे, सैंड के जो सेडिमेंट्स होंगे, उनसे जो रॉक बनेगी, दैट इज नोन एज सैंडस्टोन. These rocks may also contain fossils of plants, animals and other microorganisms that once lived on them. Fossils क्या होते हैं? Fossils are like the dead remains which are trapped in the layers of rocks. यानी ऐसे sediment, यानी like there are some plant. अब वो plant जब पूरा सूख गया, all right, वो पूरा खत्म हो गया है, अब उसके बाद क्या होता है, वो जाएगा कहाँ, वो वहां से कहीं जाएगा तो नहीं, विल रिमेन ऑन द लैंड, तो वो लैंड के अंदर चला जाता है। ओके, इट स्टार्ट डीकम्पोजिंग, वो लैंड के अंदर जाता है, और फिर वहां पर जो स्टोन की लेयर्स होती है, जो रॉक्स होती है, उनके बीच में ये जो डेड रिमेन्स होते हैं एनिमल्स के या प्लांट्स के, ये इनके बीच में ऐसे रह जाती हैं। एंड द टाइम व्हेन दीज रॉक्स मूव, और फिर जब इनका सेडिमेंट्स क्रिएट होते हैं, व्हेन दे फॉर्म देयर सेडिमेंट्री रॉक्स, तो उस टाइम पर इनके अंदर ये फॉसिल्स भी हो सकते हैं। वी कैन फाइंड आउट दीज फॉसिल्स। मतलब अगर इस रॉक पर इफ थिंक इफ देयर वाज अ प्लांट, ऑलराइट, देयर वाज अ प्लांट ऑन दिस रॉक। अब क्या हुआ, ये रॉक जैसे ही टूटी, ऑलराइट, दिस देयर वाज अ प्लांट, अब जैसे ये प्लांट खत्म हो गया, ओके, सो इट विल स्टार्ट डीकम्पोजिंग अंडर इट, इसके अंदर चला जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही इसके अंदर चला गया तो उसके डेड रिमेन्स आ गए इस रॉक के अंदर। अब ये रॉक जैसे ही सेडिमेंट फॉर्म करेगा, सो सम पार्ट्स ऑफ दीज फॉसिल्स might be there in any of these sediments. अब क्या होगा, अब ये सेडिमेंट से सेडिमेंट्री रॉक बनेगी, तो ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स होंगी, इनमें ये पार्टिकल्स फॉसिल्स के हो सकते हैं। Now we are done with both the rocks, igneous and sedimentary. Now we'll look at the last type of rock, which is the metamorphic rock.
Metamorphic rocks. When first of all, the word metamorphic comes from the word metamorphosis, which means change. अब जब ये igneous या igneous या sedimentary rocks जो होती है, when they come under great pressure and heat, they change into slate, they change themselves. Alright, तो मतलब ये जैसे हमारी igneous rock है, okay, and this is our sedimentary rock. अब ये दोनों rocks हैं, इन दोनों rocks के ऊपर क्या हुआ? इन दोनों रॉक्स के ऊपर बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर है, ठीक है। दोनों के ऊपर क्या हो रहा है? हीट और प्रेशर के कारण ये दोनों जो रॉक हैं, दे कन्वर्ट और दे चेंज देमसेल्फ इनटू अनदर थिंग, और ये अनदर थिंग क्या है? दीज आर द मेटामॉर्फिक रॉक्स. So when igneous and sedimentary rocks change due to heat and pressure, they are known as metamorphic rocks. इसके example है like the clay, when it comes under heat and pressure, it changed into slate and limestone into marble. Like clay जब heat और pressure के अंदर आता है, so it becomes slate, यानी slate क्या हो गया? हमारा metamorphic rock. Same way जो limestone होता है, जब इसमें heat और pressure आता है, so it forms marble. Now these rocks are helpful to us in many ways, and this we'll see from the next video कि किस तरह से rocks हमें helpful होते हैं, and also we'll see about the rock cycle. So see you in the next part. Till then, bye bye, take care.